Good morning, friends. Today we are going to start a new chapter, the living organism and their surrounding. Uh, Let us start with the term habitat. The surrounding where organism, that is plant या animal या microorganism, live is called as habitats. So habitats are the surrounding where these organisms live comfortably. These organisms also depend for their food, water, air, shelter and other needs on their habitats. Okay, all these habitat can be grouped into two class, या two group terrestrial. So habitats may be terrestrial या aquatic habitat या terrestrial habitat. So let us first start terrestrial habitat. A land based habitat are called as terrestrial habitat, या soil based habitats are called terrestrial habitats. For examples, forest is a terrestrial habitat. Similarly, grassland, desert, coastal areas, mountain region, these all are the examples of terrestrial habitats. So next one is aquatic habitat. Aquatic habitats are the water based habitat. It is water based habitat are called aquatic habitat. Yeah, you can say habitats habitats of plant and animal या other organism that live in water are called aquatic habitats. Some examples of aquatic habitats are here, like ponds, swamps means दलदली इलाके, lake मतलब झील, rivers and oceans. These all are the examples of aquatic habitats. Let us discuss another things, component of habitat या constituent of habitat. Okay, so there are two component of every habitat. First component is abiotic habitat and second one is biotic habitat, biotic and abiotic habitat. Okay, so here biotic habitat, the living things such as plant, animal या microorganisms in a habitat are its biotic habitats. All living things, okay, are the constituent of biotic habitat. Similarly, abiotic habitat, the various non-living things such as rock, soil, air, water, light, temperature, humidity, these all are the component of abiotic habitats. Okay, next term is adaptation. Adaptation, the presence of specific features या certain habits which enable the organism, that is plant या animal, to live in their surrounding या habitat is called as its adaptations. This is the specific feature या habitats, certain habitats, okay, which help in living organism to survive their surrounding. Okay, so today in this scenario we are going to learn the adaptation of plant and animal in their habitats. तो देखते हैं adaptation of plants. फर्स्ट में देखते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में स्पेशली adaptation of organism in terrestrial habitats. So terrestrial habitats are the desert, grassland, mountain areas. These are all the terrestrial habitats. So first let us example of terrestrial habitat, desert. Adaptation in desert. We already know that in desert there are various kind of animals like camel, desert snake, desert rats, etc. are found, as well as there are desert plants like cactus also found there. So how camel या other desert animal या plant survive there? So let us start with camel. Camel have a long leg. कैमल के लंबे पैर होते हैं, which help to keep their body away
फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड, ये सैंड के हीट से उसके बॉडी पार्ट या ट्रंक को दूर रख कर देता है। दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, बहुत कम अमाउंट में यूरिन निकालता है, ये यूरिनेशन करता है, पानी को कंजर्व करके रखता है। देयर डंग इज़ वेरी ड्राई, डंग इसके जो होते हैं वो बहुत ड्राई होते हैं, उसमें वाटर नहीं होता है। दे डू नॉट स्वेट, और ये पसीने भी नहीं बहाते, क्योंकि डिज़र्ट एरिया में पानी की बहुत कमी होती है और ऐसे प्लांट या एनिमल उनको पानी बचाना होता है। सो नेक्स्ट, डिज़र्ट रैट एंड स्नेक विच डू नॉट हैव लॉन्ग लेग, इनके तो लॉन्ग लेग नहीं होते, तो क्या करते हैं ये, दे लीव या स्टे इनसाइड, दे लीव या स्टे इनसाइड द बरोज, ये दिन में तो अपने बिलों में छुपे होते हैं क्योंकि इनके पैर लंबे नहीं होते और गर्मी से बचे रहते हैं। बट डिज़र्ट प्लांट लाइक कैक्टस, they lost very little water through transpiration. There is no transpiration, actually their leaf is very small. The leaves in desert plant are generally absent, yeah, they, if they are present, they are in very small in size, बहुत छोटे स्मॉल साइज में होते हैं। या लीफ में भी कन्वर्ट इनटू स्पाइन, इसके लीफ जो होते हैं वो कांटे में कन्वर्ट हो जाते हैं। ग्रीन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज द actually perform the photosynthesis. Okay, the stem also covered with a thick layer which help to retain water. क्यूटिकल या वैक्सी लेयर होता है जो पानी को ट्रांसपिरेट होने से रोकता है। ओके, रूट्स ऑफ डेजर्ट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रूट जो होते हैं वो बहुत नीचे तक जाते हैं वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए, बिकॉज दे ग्रो इन सच एरिया वेयर डिजर्ट एरिया इज ग्रोइंग या एरिया हैविंग लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर इन सॉइल। ओके, सो नेक्स्ट, एडाप्टेशन इन माउंटेन रीजन। अब माउंटेन रीजन में देखिए, सो द हैबिटेट जनरली माउंटेन रीजन हैबिटेट आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड विंडी, यहाँ टेम्परेचर बहुत लो होता है, करीब करीब तो माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। इन सम एरिया स्नोफॉल में टेक प्लेस इन विंटर, ठंडियों में बस विंटर में स्नोफॉल भी होता है, जैसे अपने यहाँ जम्मू एंड कश्मीर, रजौरी इलाके में, ये सब लेह लद्दाख इलाके में जो बहुत ठंडा पड़ता है, तो ऐसे इलाके। तो एडाप्टेशन इन प्लांट्स इन सच एरिया, there are plant like oak, pines, devdar, fir. Okay, these, there are conical shaped tree having sloping branches, इनके trees के जो shape होते हैं वो cone like होते हैं। ओके, leaves of these plants are needle like, needle के तरह होते हैं, सुई के तरह पतले पतले। these help the the real water, ओके, रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड इजली, रेन वाटर जो है आसानी से स्लाइड हो जाए या स्नो स्लाइड होकर के नीचे गिर जाए। ओके, प्लांट को नुकसान न पहुंचाए। चीड़, देवदार, ये सारे प्लांट्स हैं इसमें। नेक्स्ट, एडाप्टेशन इन एनिमल्स। सो एनिमल लाइक स्नो लियोपार्ड, याक, माउंटेन गोट, दीज एनिमल्स आर फाउंड इन दिस माउंटेन रीजन। ओके, सो दे हैव थिक फर, फर मीन्स बाल होते हैं, हेयर होते हैं, एंड दिस फर प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वेरी कोल्ड इन्वायरमेंट, ये ठंड से बचाते हैं क्योंकि ये रजाई गद्दे की तरह काम करते हैं। इनके रोए जो होते हैं, बाल होते हैं, वो बड़े बड़े होते हैं जिससे कि इनको ठंड ना लगे, जैसे हम लोग स्वेटर पहनते हैं। याक हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म, स्नो लियोपार्ड हैज थिक फर ऑन देयर बॉडी, फर का मतलब बाल होते हैं। ओके, एंड टोज। ओके, माउंटेन गोट हैज स्ट्रॉन्ग हूफ फॉर रनिंग अप ऑन रॉकी स्लोप। ओके, नेक्स्ट देखिए, एडाप्टेशन इन ग्रासलैंड, ग्रासलैंड या फॉरेस्ट। देखिए, एनिमल लाइक लायन या टाइगर, deer, these all animal live in grassland या forest. So there are so many animals, carnivores,
या मीट ईटर जैसे लायन टाइगर है, एंड हर्बीवोर्स लाइक डियर जिराफ दे लिव इन ग्रासलैंड एंड एडाप्टेड इन ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट। द लायन, अब लायन में देखिए एडाप्टेशन, लायन इज स्ट्रॉन्ग and very fast moving animal. They are brown colored predators. Predator means animal that kill other animals. ये दूसरे शिकारी होते हैं दूसरे एनिमल को, जैसे डियर है उसको प्रे कहते हैं, तो उनको ये कैच करते हैं। ओके, लायन हैव लॉन्ग क्लॉ इन देयर फ्रंट लेग दैट कैन विथड्रॉ इनसाइड आउट। ओके, क्लॉ मतलब नाखून, इसके नाखून जो होते हैं लंबे होते हैं, जिससे कि ये क्या करते हैं, प्रीडेटर को कैच करते हैं। ओके, नेक्स्ट द लायन, ओके, क्लॉ देयर फ्रंट ब्राउन इन कलर। सो ब्राउन कलर ऑफ दिस एनिमल हेल्प हिम या हर टू हाइड इन ड्राई ग्रासेस। ओके, ब्राउन कलर ग्रास का भी होता है, इनका भी होता है, तो उसमें ये आसानी से छुप जाते हैं। ओके, next the eye in front of the face allow it to have correct idea about the location of prey। prey का मतलब शिकारी, जैसे शिकार, जैसे डियर है, तो लायन का जो आँख होता है वो एकदम फ्रंट में होता है और वो डियर को बेहतर ढंग से देख सकता है और उसको लोकेट कर सकता है कि यहाँ पर ही हमें उसको कैच करना है। नेक्स्ट, डियर इज आल्सो फाउंड इन ग्रासलैंड। डियर हैज स्ट्रॉन्ग टीथ for chewing the hard plant stem. It has long ear to hear movement of predator। इसके कान जो होते हैं लंबे होते हैं, कान को ये अलग अलग डायरेक्शन में चेंज करके प्रीडेटर की आवाज़ को सुन सकते हैं। ओके, द स्पीड ऑफ डियर हेल्प देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रीडेटर। जो हिरन होता है वो बहुत तेज़ी से दौड़ता है और अपने डायरेक्शन को चेंज करता है, जिससे कि वो लायन को थका देता है, और ये बहुत फास्ट दौड़ सकता है। इसके जो बोन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, गर्दन इसके बहुत तेज़ी से मुड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एडाप्टेशन। हाँ, एडाप्टेशन इन एक्वाटिक हैबिटेट या वाटर हैबिटेट। so adaptation in oceans, so in oceans there are so many organisms like fishes, octopus, whale, and dolphins live there. So fishes have streamlined body shape. Streamlined body shape means the shape which is tapering at front as well as back, but thick at broader at middle. Okay, so streamlined body shape which help to move easily in water. जैसे streamlined body shape, जैसे इस तरह का, like this. Okay, suppose करें कि ये tail है and this is the mouth, so this is the point like tapering, यहाँ भी point है, and this is the middle में ये thick है। okay, so such kind of streamlined body shape is helpful for moving in water। okay, ये पानी को चीरते हुए आगे बढ़ सकता है। gills help them to use oxygen dissolved in water। gills से ये सांस लेते हैं, इनके lungs नहीं होते। okay, sea animals like squid, octopus are also found in water। they do not have streamlined body shape। इनके streamlined body shape नहीं होते, therefore they stay deep in ocean या near the sea bed। ये sea bed के पास रहते हैं या एकदम नीचे रहते हैं। and they catch prey, अपने शिकार को ये पकड़ते हैं जब शिकार इनके तरफ आता है, क्योंकि ये ज़्यादा मूव नहीं करते। however when they move in water they make their बॉडी स्ट्रीमलाइन। जब पानी में ये मूव करते हैं तो अपनी बॉडी स्ट्रीमलाइन बना देते हैं, जेलीफिश या ऑक्टोपस या स्क्विड। ओके, नेक्स्ट, एनिमल लाइक डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स दैट डू नॉट हैव गिल्स, दे ब्रीथ इन एयर थ्रू नॉस्ट्रिल या ब्लो होल्स। इनमें ब्लो होल्स होते हैं, नॉस्ट्रिल या ब्लो होल्स होते हैं। दे हैव लंग्स इन देम, दे डू नॉट हैव गिल्स।
Okay, that is why they come out at the surface of water and then suck the large amount of air, and then they go deep inside the वाटर सरफेस। तो ये ऐसा करते हैं। डॉल्फिन आप देखते होंगे हवा में बार बार बाहर आते हैं। नेक्स्ट, एडाप्टेशन इन पॉन्ड्स या लेक्स। पॉन्ड्स एंड लेक्स ये फ्रेश वाटर हैबिटेट है। द प्लांट विच ग्रो इन वाटर आर एक्वाटिक। सम एक्वाटिक प्लांट लाइक वाटर लेटस, हाइसेंथ फ्लोट ऑन वाटर। ये पानी पे तैरते हैं, इनके रूट नीचे नहीं जाते। सम एक्वाटिक प्लांट पार्शियली सबमर्ज्ड इन वाटर, एग्जाम्पल्स वाटर लिली या लोटस। ओके, दे आर द पार्शियली सबमर्ज्ड। ठीक है, ये पूरी तरह से डूबे नहीं होते, ये ऊपर तैरते रहते हैं, लेकिन इनका जो रूट है ज़मीन में लगा रहता है। रूट ऑफ दिस प्लांट फिक्स ऑन द सॉइल बिलो द वाटर। ओके, सो दे आर द पार्शियली सबमर्ज या डूबा होना, आंशिक रूप से डूबे होते हैं ये पानी में, पूरी तरह से नहीं। सम एक्वाटिक प्लांट आर कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर। ये कम्प्लीटली डूबे होते हैं पानी में, लाइक हाइड्रिला एंड बैलिसिनेरिया, दे आर कम्प्लीटली सबमर्ज्ड। ये पानी में टोटली डूबे रहते हैं। अब देखिए इनमें कैसे एडाप्टेशन होता है एक्वाटिक प्लांट में। दिस प्लांट हैव वेरी शार्ट एंड स्मॉल रूट्स। इनके रूट्स जो होते हैं बहुत शार्ट और स्मॉल होते हैं, क्योंकि ये पानी में होते हैं तो रूट का काम पानी को ऑब्जर्व करना होता है, लेकिन इसको तो पानी मिलता है, इसलिए इनके रूट बहुत ज़्यादा फंक्शनल नहीं होते। तो द मेन फंक्शन ऑफ रूट इज नॉट एब्जॉर्बिंग वाटर बट मेकिंग एंकोरेज। ओके, स्टेम्स ऑफ दिस प्लांट आर सॉफ्ट हॉलो। सॉफ्ट होते हैं स्टेम, हॉलो होते हैं, हॉलो मतलब खोखला होते हैं। ओके, हॉलो एंड लाइट हैविंग लार्ज स्पेस फिल्ड विथ एयर। ओके, स्टेम कैन बेंड इजली। इनके स्टेम मुड़ सकते हैं वाटर करंट से, टूटेंगे नहीं, फ्लेक्सिबल होते हैं। द सबमर्ज्ड एक्वाटिक प्लांट हैव नैरो एंड रिबन लाइक लीव्स। ये नैरो और रिबन पतले पतले लीव्स होते हैं, क्योंकि पानी पर ज़्यादा ये फ्रिक्शन प्रोवाइड न कराएं। विच कैन बेंड इन फ्लोइंग वाटर ऑफ रिवर या स्ट्रीम। ये बेंड हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखें, एनिमल एडाप्टेड इन लैंड एज वेल एज वाटर। या ऐसे एनिमल को कहते हैं एम्फीबियंस, जो लैंड पर भी रह सके वाटर में। तो ऐसे एनिमल्स में किस तरह के एडाप्टेशन होते हैं? एनिमल लाइक फ्रॉग दैट कैन स्टे बोथ इनसाइड द वाटर एज वेल एज ऑन मूव ऑन लैंड। सो फ्रॉग हैव स्ट्रॉन्ग बैक legs that help them in leaping and catching the prey। जो फ्रॉग होता है उसका पीछे वाला पैर बहुत स्ट्रांग होता है, जिससे कि वो छलांग लगा लेता है और प्रेज को पकड़ सकता है, कीड़े मकोड़ों को। फ्रॉग हैव वेब्ड फीट विच हेल्प देम टू स्विम इन वाटर। वेब फीट पतवार की तरह होता है जो पानी में आसानी से तैर सकता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट वीडियो।